माँ प्रकृति. Thank you, Nishanji. First of all, I would like to acknowledge our honorary chief guest of this program, Shri S. Govardhan Reddy ji, Honorable Member Secretary of High Court Telangana, Shri Vijay Sen Reddy ji, Honorable Justice, and our other speakers of the Shri Linga Murthy ji, Shri Prabhakar Reddy ji, Shrimati Jayalekha ji, Shri Ravindra ji, Shri Khader Wali ji, and last but not least, Nishant Reddy ji, founder of Dharm Seva, to give us opportunity to talk on the subject. Thank you so much. A little brief introduction of our organization is Natural Lifestyle is a registered public charitable trust. We have been considering a movement, Swasthya Bachao Abhiyan. Since 1930, our first guru, Acharya K. Lakshman Sharma ji, is known as father of naturopathy in India. And his foremost disciple, Brahmalin Acharya Sheshadri Swaminathan ji, is known as Bhishma Pitama of naturopathy in India. From last 22 years, this movement is led by Acharya Shri Mohan Gupta ji. And under his guidance and supervisions, me, myself, and our whole team, including Nishan ji, Telangana team, Ankita ji, and many of our volunteers running this movement from their heart. Now, our organization, our services are honored by Government of India, Government of Delhi, Ayush Mantralaya, and many other authorities as well. Now, I would like to hand over mic to Acharya ji to continue the subject of the day. Thank you. माँ प्रकृति के उन सभी संतानों को जो माँ प्रकृति के रहस्य को जानकर रोग रूपी दरिद्रता को उतार फेंक कर स्वास्थ्य के सम्राट बनना चाहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। आइए, today's subject. Thanks. Spirituality, health, and climate change. तो जब हम इन तीनों को मिला के क्लाइमेट चेंज स्पिरिचुअलिटी के द्वारा और हेल्थ के द्वारा कैसे कर सकते हैं, मेरा जो सब्जेक्ट है वो है हेल्थ। तो हम हेल्थ को फोकस करके क्लाइमेट चेंज में कैसे योगदान डाल सकते हैं, कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। When we think about climate change, we always bring up the green revolution. We always talk about green revolution, global warming, ozone layer radiation, pollution, but we never think about health. We never think that health is connected to climate change. जी, तो जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो उसके साथ हम हेल्थ को कैसे रिलेट कर सकते हैं, और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो लोग उसको कैसे सोचते हैं। Whenever we talk about climate change, what do people think? Usually they say, climate change, this is not my cup of tea. What can I do for climate change? क्लाइमेट चेंज के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो अथॉरिटीज का काम है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति, मेरी क्या हैसियत है कि मैं पूरे क्लाइमेट को चेंज करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। जनरली लोग ऐसा सोचते हैं। Because there are very few people like Nishant Reddy ji and his team who are working for the climate change.
ऐसे लोग तो हमें बहुत ज्यादा नहीं मिल सकते। पूरी सोसाइटी में कुछ परसेंट ही लोग होंगे जो इतना गहराई से सोचते होंगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन हमने जब तक पूरी सोसाइटी को इसके अंदर हम अलाइन नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हम क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते। तो पूरी सोसाइटी को हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं? So we will have to align the whole world in this. But how will it be possible? I have few questions to you, all our participants, all our listeners. I want to ask, are you fed up with medicines, with your diseases, with your regular diseases? Are you fed up with lot of medicines and unnecessary surgeries? Do you know the unnecessary surgeries which we are doing nowadays? Would you like to see your blood pressure, your diabetes, thyroid, uric acid, and other tests return to normal in a week, within a week? Do you want to live a healthy life without the fear of any future diseases? The chronic diseases for which we are taking medicines nowadays are there on your screen. You can see many of you are taking medicines for these. Do you want to avoid unnecessary surgeries? Please, my technical head, show unnecessary surgeries. Surgeries which we are doing nowadays: sinusitis, tonsillitis, piles, kidney stone, gallbladder stone, angioplast, knee replacement, uterus removal surgery, bariatric surgery, disc prolapse, prostate, appendix, ovarian cyst, cesarean delivery. All these are very, very common surgeries people are doing nowadays. Do you want to free from these surgeries? Do you want to avoid these surgeries? So let's be with us. आइए, सभी तरह की जो रोजाना की दवाइयां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, और जो हम सर्जरीज करा रहे हैं एक्सीडेंट को छोड़ के, इमरजेंसी को छोड़ के, अदरवाइज उनसे लाइफ टाइम फ्रीडम पाने के लिए हम इस साइंस को समझते हैं और इसके द्वारा क्लाइमेट चेंज कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। नेचुरल लाइफस्टाइल का एक बेसिक प्रिंसिपल है 5 टाइप्स ऑफ यूनिटी, जिसमें है Unity of diseases, unity of cause of disease, unity of treatment, unity of health and disease. Unity of health and disease, and unity of food and medicine. सभी रोग एक हैं, सभी रोगों का कारण एक है, सभी रोगों का इलाज एक है, रोग और स्वास्थ्य एक है, और भोजन और औषधि एक है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि सभी रोग एक हैं, तो एकदम से हम बात को रिलेट नहीं कर पाते। हमारे शरीर में से गंदगी को, फॉरेन मैटर को, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए 4 रास्ते हैं। पेशाब का, यूरिन के द्वारा, किडनी के द्वारा हम वेस्ट को बाहर निकालते हैं। पाखाने का हम लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा बाहर निकालते हैं। पसीने का हम स्किन के द्वारा निकालते हैं, और श्वास का हम लंग्स के द्वारा निकालते हैं। तो 4 रास्तों के द्वारा जब गंदगी बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है, शरीर के अंदर गंदगी रुकना शुरू कर देती है, हम कहते हैं उसी का नाम रोग है। जब हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है, उसी का नाम रोग है। जब हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, रिपोर्ट्स के अंदर हमें क्या दिखता है? शुगर बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, थायराइड है, रसोली है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, कैंसर है, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है, किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ओबेसिटी है, लंग्स के अंदर बलगम है, और हमारे स्कल के में डैंड्रफ है, स्किन डिजीज है। तो शरीर के अंदर जितनी भी चीजें जो दिख रही हैं, क्या ये होनी चाहिए? नो। अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं
जांच कराने के बाद जो दिखते हैं और नहीं होने चाहिए, इसका कारण हमारा शरीर अंदर से गंदा है। हम क्लाइमेट चेंज की तो बात करते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी बात करनी पड़ेगी कि हमारा अंदर का क्लाइमेट कैसा है। यदि हमारे शरीर के अंदर ये सब चीजें हैं तो हमारा शरीर अंदर से पोल्यूटेड है, चलती फिरती पोल्यूटेड फैक्ट्री है हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी, सभी रोग एक हैं कि हमारा शरीर अंदर से गंदा है। सभी रोगों का कारण एक है, गलत तरह का खान पान, गलत तरह का रहन सहन, गलत तरह का सोच विचार। यदि हम शरीर को अंदर से, सभी रोगों का इलाज एक है, यदि हम शरीर को अंदर से साफ कर देंगे तो हमारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। तो सारे रोगों को ठीक करने के लिए अंदर से हम साफ कैसे कर सकते हैं? हम घर की सफाई करना जानते हैं, हम बाकी सभी चीजों की सफाई करना जानते हैं, शरीर की बाहर से सफाई करना जानते हैं। क्या हम शरीर की अंदर से सफाई करना जानते हैं? क्या हमने शरीर की अंदर की सफाई की तरफ कभी ध्यान दिया है? शरीर की अंदर की सफाई करने के लिए हमने क्या करना है? तो उसके लिए हमें देखना होगा यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन। यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन कहता है योर फूड शुड बी योर मेडिसिन। आपका भोजनालय ही आपका औषधालय होना चाहिए। तो इसी बात को जो हम कहते हैं कि योर फूड शुड बी योर मेडिसिन, आपका भोजन ही ऐसा होना चाहिए जो शरीर को साफ कर दे। जनरली हमारा भोजन ऐसा है जो शरीर को साफ नहीं बल्कि और गंदा कर देता है। तो ऐसा भोजन जो शरीर को साफ कर दे वो कौन सा हो सकता है? और इसके लिए आयुर्वेद क्या कह रहा है यूनिटी ऑफ फूड एंड मेडिसिन को लेकर, जरा इसको देख लेते हैं। आयुर्वेदा कह रहा है, if your food is wrong, medicine is of no use. If your food is right, medicine is of no need. अगर आपका भोजन खराब है तो दवाई लेने का कोई फायदा नहीं हो सकता। अगर आपका भोजन ठीक है तो दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात कही आयुर्वेद ने। और इसी बात को एलोपैथी के जनक हिप्पोक्रेट्स कैसे बोलते हैं? हिप्पोक्रेट्स कहते हैं, let food be thy medicine and medicine be thy food. भोजन को ही औषधि होने दो। अब इसी बात हिप्पोक्रेट्स आगे क्या बोलते हैं? हिप्पोक्रेट्स कहते हैं, your natural feeling, natural forces within us are the true healers of diseases. आपको शरीर को ठीक करने की शक्ति आपके शरीर के अंदर है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि एलोपैथी भी यही कह रही है कि योर फूड शुड बी योर मेडिसिन, और आयुर्वेद भी ये कह रहा है योर फूड शुड बी योर मेडिसिन, और नेचुरोपैथी तो ये कहती है कि योर फूड शुड बी योर मेडिसिन। यदि हम अपने शरीर को अंदर से साफ कर लें भोजन के द्वारा, तो फिर जो पहले हमने पूरी एक बीमारियों की लंबी लिस्ट दिखाई थी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ओबिसिटी, नी पेन, आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, एस्थमा, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, कितना कुछ है देखो। तो इन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, और जितनी हम सर्जरीज आमतौर पे करा रहे हैं, उन सभी सर्जरीज से बचने के लिए कौन सी ऐसी डाइट हम लें और जिससे हमारा ये सब ठीक हो जाए और दवाइयां बंद हो जाएं, रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएं, और ऑपरेशन डॉक्टर खुद ही बोल दें कि नहीं कराना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए हमने क्या लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और उसका हमारा क्या रिलेशन है क्लाइमेट चेंज के साथ, आइए जरा उसको देख लेते हैं। हम अपनी सुबह से किस तरीके से हम अपने फूड को लेंगे ताकि हम स्वस्थ हो जाएं और हमारा शरीर अंदर से पोल्यूशन फ्री हो जाए। जी लेट्स स्टार्ट विद द डाइट। सबसे पहले आज हम आपको सिर्फ एक छोटा सा डाइट प्लान, चेंज योर ब्रेकफास्ट देंगे, जिसमें हम आपको स्टार्ट करेंगे अपने दिन को एशगार्ड जूस। एशगार्ड जूस इज ऑल्सो नोन एज विंटर मेलन। ये जूस, ये पेठा, ये एशगार्ड जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वी हैव टू पील ऑफ इट
इसके सीड्स हमें निकालने हैं और जूसर और मिक्सर में इसका जूस तैयार करना है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। We have to take 1 glass of juice without any salt, without any lemon adding in it. जैसा जूस हमारे लिए तैयार होगा, 1 ग्लास जूस हमने सुबह सुबह खाली पेट 8 बजे के आसपास हमने ये लेना है, एम्प्टी स्टमक। आफ्टर 2 hours of juice, अगर ये आपको अवेलेबल ना हो, you can have coconut water or any seasonal vegetable juice. Seasonal vegetable juice can be cucumber and tomato juice, bottle gourd and tomato juice, or bathua tomato or spinach tomato juice. Any one of these you can have in the morning by 8 a.m. or empty stomach. After the 2 hours of having juice, you can have full plate of salads. Full plate of seasonal fruits. In North India, in Delhi, we have kinnu, orange, guava, sharifa, that is custard apple, papaya, pomegranate, any of seasonal fruit in your local area, which is available easily. You can have full plate of fruit at that time by 10 a.m. After having fruits, after 2 hours of having fruits, you can have full plate of salads. NLS salad is very, very delicious and tasty. You can have seasonal vegetables in this salad. That is in North India, that is radish, carrot, cauliflower, capsicum, turnip, beetroot, spinach, coriander leaves. These any one of any 2 or 3 from above. Which do you like? And the most important and essential things are coconut, grated coconut scrapings, tomatoes, and coriander leaves. These three things are mandate and others are optional. Which do you like? And prepare the salad whole plate. Kindly do not add any type of salt, any type of kali mirch and like this, black chili. कुछ भी इसमें add ना करें, and prepare the salad like this, which we are showing you in a big plate. Have around 400 or 500 grams salad every day around 12 p.m. 12 बजे तक till 12. You have to follow this. After having this much of salad, whenever you feel hunger, you can have your normal lunch or normal dinner at night. Which do you like or which do you prefer according to your health? This is the very, very short plan which we call magical diet plan. इसको लेने के बाद what will happen? You will see that your blood pressure level, your diabetes level will be reduced from before. पहले से वो reduce होने लग जाएगा. जब आप 12 बजे तक ये ले लेंगे, इसके साथ साथ सुबह के टाइम में आप प्राणायाम कर लेंगे, तो इसमें एनएलएस प्राणायाम कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और साथ साथ हम सुबह सुबह सन बाथ कर लेंगे। तो इस तरीके से 12 बजे तक की ये डाइट, जिसमें हमने फ्रूट दिया, एक ड्रिंक दिया और एक सैलेड दिया, और प्राणायाम आप ऐड करेंगे और सन बाथ ऐड करेंगे, और 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, लगभग आधा घंटा ब्रिस्क वॉक। यदि आप ये सारे काम कर लेंगे तो आप क्या देखने वाले हैं कि आपका विद इन अ वीक आपको डायबिटीज की दवाइयों की डोज कम करनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर की दवाइयों की डोज कम करनी पड़ेगी, हो सकता है बंद ही करनी पड़े, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल शुरू हो जाएंगी होनी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका थायराइड लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, सभी तरह की बीमारियों में आपको राहत महसूस होने लग जाएगी। अगर हार्ट की ब्लॉकेज है उसके अंदर आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा, श्वास अच्छे से आना शुरू हो जाएगा, सभी तरह के रोगों के अंदर आपको जबरदस्त फायदा होने वाला है। अभी हमने आपको सिर्फ ये 12 बजे तक का रूटीन दिया है और इसी से आपको मिरेकुलस रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो हाँ जी, बायो प्रोडक्ट, तो इसके बाद हाँ जी, बायो प्रोडक्ट्स क्या होगा, जैसा अन्न वैसा मन। तो जब हम इस तरीके का भोजन लेना शुरू करेंगे, ये आपके माइंड को चेंज करेगा। हम जो भी खाते हैं वो आता कहाँ से है, हमारी माइंड से आता है। जैसे ही हमारा माइंड चेंज होगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट्स कैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। जी होगा क्या,
Ultimately, the people who will take this type of diet will have to leave non-veg क्योंकि उनका mind change हो जाएगा. They will be diverted from wine, beer, smoking, industrial food. People will follow plant-based diet. Water consumption will be reduced. The use of ACs will be reduced after following this diet. Automatically, our planet will be free from environmental problems like global warming, radiation, pollution, and harmful gas emissions. What is more important? Pollution inside the body or pollution outside the body? तो जब हम इनसाइड बॉडी के इनसाइड का पोल्यूशन ठीक कर लेंगे तो आउटसाइड का पोल्यूशन अपने आप ही ठीक हो जाएगा. मेन प्रॉब्लम कहां पर है? देयर वाज नो पोल्यूशन ऑन द प्लैनेट. प्लैनेट के ऊपर पोल्यूशन था ही नहीं, पृथ्वी के ऊपर पोल्यूशन था ही नहीं. पोल्यूशन आया कहां से? पोल्यूशन जो आदमी है, मैन है, इसी के लाइफस्टाइल से आया. The main problem is not climate, it is modern lifestyle. Problem हमारी lifestyle है. And this pollution was caused by non-veg, by smoking and alcohol, fast food, junk food, industrial food, or even through medicines. On the other side, on the other hand, people who eat fruits and vegetables are climate friendly and they help to make this planet a beautiful place to live in. तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जितनी भी आबादी है, वर्ल्ड की देख लो, इंडिया की देख लो, 125 करोड़ की हमारी जो आबादी है, यदि ये अंदर से पोल्यूटेड है और यदि इसकी डाइट प्लांट बेस्ड नहीं है, इंडस्ट्रियल फूड है, नॉन वेज है, तो ये सब पोल्यूटेड जनरेटेड फैक्ट्री है ह्यूमन बॉडी. ये खुद ही अंदर से पोल्यूटेड है और पोल्यूशन जनरेट भी करती है और वातावरण को इफेक्ट करती है. यदि हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होगी और हमारी डाइट मोस्टली 80%, 70-80% प्लांट बेस्ड होगी, तो हमें ना बीमार होने की जरूरत है और ना ही क्लाइमेट को खराब करने की जरूरत है. यदि हमारी डाइट के अंदर मैक्सिमम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे तो मैक्सिमम लोगों को एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उगाने होंगे, पेड़ पौधे उगाने होंगे, तो हमें क्लाइमेट चेंज के अंदर बड़ी जबरदस्त राहत मिल सकती है. जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं उनको एसी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती. ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है. हम पिछले 22 साल से इसको फॉलो कर रहे हैं. हमारे जितने फॉलोअर्स हैं उनको हम देखते हैं, हमें एसी की उतनी जरूरत नहीं पड़ती. हम मटके का पानी पीते हैं, हमें फ्रिज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती. फ्रिज की हमें फ्रिज की जरूरत से हम फ्री हो जाते हैं. तो जब हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, हम सारी चीजों को आधे घंटे की एक टॉक में नहीं खोल सकते, लेकिन बेसिकली फंडा यही है कि अगर हम अपने फूड को चेंज कर लें तो हम क्लाइमेट को चेंज कर सकते हैं. यदि हम अपनी हेल्थ को ठीक कर लें, हम पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को ठीक कर सकते हैं और हम क्लाइमेट की हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं. एट लास्ट, आप सभी लोग जो हमें सुन रहे हैं, मैं थैंकफुल हूँ आप सभी के लिए. आप हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, आपकी इनर हेल्थ को, आपकी इंटरनल हेल्थ को, आपकी डिजीजेस को दूर करने के लिए, दूर करके हम क्लाइमेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज ला सकते हैं, इसके लिए हमें एक सेवा का मौका दीजिए. हम लोग आपके साथ 24/7 फ्रीली अवेलेबल है. आवर ऑर्गेनाइजेशन इज रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. दिस इज आवर पैशन, not our profession. You can contact us on our free healthcare number 9870291635. Sorry, this is 5. This is wrong written. This is 5. 9870291635 is our number. You can watch our free online sessions on every Sunday, 10 a.m. to 12 p.m. Or you can come here at Delhi at our center, Saraswati Vihar, Pitampura, D840 for consultation. We are available. Our doctors team
is available, our mentors are available here for you. Now, I think we should complete with few words from Acharya ji. कंप्लीट करने से पहले 3 तरह की रसोई, एक है भगवान की रसोई, दूसरी इंसान की रसोई और तीसरी शैतान की रसोई। जो फल और सब्जियां खेतों में पकती हैं उसको सूर्य भगवान मीठी मीठी आंच पे तपाते हैं, वायु भगवान लोरी दे दे के खिलाते हैं, चंद्रमा औषधियां देता है, जल रस देता है, पृथ्वी खनिज पदार्थ देती है। जो भगवान की रसोई का खाते हैं वो भगवान जैसे हो जाते हैं। भगवान सुंदरवान है, शक्तिवान है, रोगी नहीं होते, दवाई नहीं खाते। दूसरी है इंसान की रसोई, जो इंसान की रसोई को तल के भून के बिगाड़ के बनाता है वो स्वस्थ है नहीं है, वो हेल्थ नहीं है। घी की सब्जी के अंदर, लौकी की सब्जी के अंदर सब्जी का स्वाद आना चाहिए। सब्जियों के सूप के अंदर सब्जियों का स्वाद आना चाहिए, मसालों का नहीं। तो वो इंसान की रसोई है, वो भी स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी है शैतान की रसोई, डिब्बा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद, होटलों का, ढाबों का, रेस्टोरेंट्स का खाना, शादियों का खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, इंडस्ट्रियल फूड शैतान की रसोई का खाना है। भगवान की रसोई का खाएंगे तो भगवान हो जाएंगे, इंसान की रसोई का खाएंगे तो इंसान हो जाएंगे, शैतान की रसोई का खाएंगे तो फैसला आपके हाथ। आपका स्वास्थ्य है आपके हाथ, क्लाइमेट का स्वास्थ्य है आपके हाथ। बहुत 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 धन्यवाद।